So now I believe that time is running out. Asya, I will request you to formally welcome the guest and start the program. Yes, I think we should do that. So I welcome officially both the guests here before us, Mudassir Shafi Saab and Samir Islam Saab. We are really honored to have you on the board as our eminent guests to share their experiences and their war footing preparations, how to get through the civil services. So let me just introduce them first to the students very briefly. First, we have Mudassir Shafi Saab here. He is IRS from 2014 batch. Presently, he is posted as Deputy Commissioner in budget team of Ministry of Finance, Government of India. And the best part is he is an MU alumni here, and he has done his BTech in electronics in 2007. The other guest, he is also an eminent civil servant, presently in service in Defense Ministry. He is Mohammad Samir Islam Saab. He is, since +2, he is from AMU itself. So he did his +2, then BTech in mechanical, and then MBA from our university. He is 2015 batch. He qualified in 2015. Presently, he has been inducted into Indian Defense Estate Services and posted as OSD Defense Ministry. So welcome both of you to this panel of session at RCA. I think students, I'll tell you that you all are privileged enough to have them to just have all your queries, and you can have all the interaction you want, all the question marks that you have in your mind, and talk to them, and please work them out, because I think they will not only motivate, but also they will show you the path that how you have to strive through remaining still in AMU. Because I think lots of you have the issue that being in AMU is a restriction in itself, that we are restricted to so many facilities. But I think after interacting with them, you will understand that no, this is only a myth. If we really put in good efforts, we will go through. So it's all yours, Mudassir Saab and Samir Saab. Welcome you once more. So the session is open for the discussion. Yes, please. Thank you, ma'am. Thank you so much for introducing us in such a grand manner. But anyway, उससे ग्रांड से पहले अब आते हैं कि जैसे मैम ने एक बात कही थी जो आप लोगों को समझना चाहिए, वो ये था कि हम दोनों ने बीटेक पास किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, 12th भी किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, इंटरनल स्टूडेंट थे दोनों लोग, और समीर भाई ने मेरे बीटेक करने के बाद अलीगढ़ से एमबीए भी किया। तो इफेक्टिवली ये है कि जहां आप लोग बैठे थे, अभी हैं बैठे हुए, वहीं हम लोग भी बैठे थे थोड़े दिनों पहले, थोड़े सालों पहले। तो आप और हम में कोई बहुत ज्यादा किसी भी तरह कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट ये कि हम थोड़ा पहले आ गए थे दुनिया में, बस उसके अलावा और कोई फर्क नहीं। तो इफेक्टिवली इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये लोग जो है ये पता नहीं किसी और दुनिया के हैं, इसी दुनिया के लोग क्वालिफाई करते हैं। यहीं आपके आसपास जो लोग घूम रहे होते हैं आपके साथ हॉस्टल में, क्लासेस में, बस उनको एक सही पॉइंट पर उनको ये समझ में आना चाहिए कि यस दे बिलोंग। तो आप सब लोग बिलोंग करते हैं ना, जैसे कि हमें बताया गया कि आप सब लोग सीरियसली ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको अंदाजा है कि यस यू बिलोंग इन दिस फील्ड ऑलरेडी, क्योंकि आपने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है कि हमें जो है यूपीएससी की तैयारी हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे टैलेंटेड और पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इस फर्स्ट स्टेप को नहीं ले पाते, बिकॉज उनको लगता है कि पता नहीं ये जो तैयारी है यूपीएससी उसमें तो पता नहीं क्या होता है। तो ऑल्दो बहुत डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है नॉलेज का, इंटरनेट एंड बाकी इसके पेनिट्रेशन की वजह से, लेकिन स्टिल बहुत लोग ऐसे हैं जो मैं आई थिंक मैं खुद को देखता हूँ एज एन एग्जाम्पल। जब मैं बीटेक में था तो जो आई थिंक कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। मतलब ये इसलिए नहीं था कि मैं समझता था कि मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ या नहीं हो पाएगा मुझसे, इस तरह के, क्योंकि कभी उस तरह का जहन ही नहीं आया कि हमारे ही जैसे लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं। पहला स्टेप तो वही है, वही सबसे बड़ा बैरियर है, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये कोई और मखलूक है, ये कोई और क्रिएशंस हैं जो तैयारी कर रहे हैं,
और हम कुछ और है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत यही है कि नंबर 1 टू एक्नॉलेज कि आप और जो लोग तैयारी करके निकालते हैं इस एग्जाम को वो एक ही हैं, कोई अलग उसमें है नहीं, कोई स्पेशल तरह के लोग नहीं है जो निकाल रहे होते हैं। नंबर 1 पहला तो ये एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है, आई एम श्योर आप सब लोगों ने कर लिया है। तो मैं स्पीच नहीं देना चाहता, लेकिन पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि नहीं, आपने पहला स्टेप तो कर ही लिया है, जो सबसे जरूरी स्टेप है। नंबर 2 अब क्या है उसके बाद कि कैसे करना है। कैसे करने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें बोलने की हो सकती हैं, लेकिन मुझे पहले आप लोगों से ये जानने की जरूरत है कि आप लोगों का क्या आइडिया है इसमें अभी तक। अब आई एम श्योर कि हम लोग चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका इस सेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है। आप में से जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड और व्हाटएवर। हाँ, अभी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अभी 70 डेज अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए? मतलब उसको कि श्योरली वो हो जाए प्रीलिम्स क्लियर, तो इसके लिए 70 डेज में क्या अप्रोच होनी चाहिए? वो लास्ट टाइम पीछे हम करते आए हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। ओके, ठीक है। इसके अलावा और किसी कोई जानना चाहें कि क्या हम आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस सेशन से, और कोई बोलना चाहें? हम एक साथ ले लेंगे, कंबाइन कर लेंगे क्वेरीज को। कोई भी बोलना चाहे फ्रीली, कोई भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहें, उनके दिल में जो भी चीजें हैं बोलने के लिए, अगर किसी भी टॉपिक पे वो बता सकते हैं। नहीं है कोई? चलिए इस पे ले लेते हैं। समीर भाई, मुझसे भाई आप में से कितने लोग पहले मेंस लिख चुके हैं या मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, या फर्स्ट टाइम आप लोग प्री दे रहे हैं या प्री में दिया नहीं हुआ? अगर वो भी थोड़ा पता चल जाएगा तो हमें अपना ऑडियंस का अंदाजा होगा कि कौन लोग किनको हमें एड्रेस करना है और आपकी एक्चुअल क्वेरीज होंगी क्या, क्योंकि कई बार यू कैन नॉट पुट देम इनटू वर्ड्स। तो अगर ये आप बता देंगे कि आप में से कितने लोग हैं जो प्री फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं, कितने लोग मेंस लिख चुके हैं एक बार या उससे ज़्यादा, तो थोड़ा बेटर होगा। मैं थर्ड टाइम प्री एक दे एक रहा हूँ करके सर। बता दें आप लोग एक एक करके बता दें। मैं थर्ड टाइम प्री दे रहा हूँ, मेरा 2 टाइम्स क्लियर नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो मैंने एक्चुअली 2 बार प्रीलिम्स दिया है और दोनों बार मेंस दिया है, लेकिन मेरी मतलब मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। और बाकी लोग बाकी लोग म्यूट हैं, अगर बोलना चाहें कोई तो। नहीं, उसमें ये बता दें कि जिन्होंने भी जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अलावा कोई और अटेम्प्ट था वो बता दें, या अगर बताना चाहें तो, या जिन्होंने मेंस लिखा है वो बता दें। आप दोनों के अलावा और किसी ने मेंस नहीं लिखा है इस ग्रुप में? आपको तो आइडिया होगा। नहीं, मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, तो अब वी अज्यूम के इनके अलावा बाकी सब लोग फ्रेशर्स हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ के प्रीलिम्स उन्होंने पहले लिखा होगा, लेकिन ये है कि आज से प्रीलिम्स निकला नहीं है इससे पहले कभी। मेन फोकस अभी प्रीलिम्स के ऊपर होना चाहिए, और जो थोड़ा बहुत मेंस का आप लोग पूछना चाहते हैं तो मुदस्सिर भाई आप बताइए पहले, फिर मैं उसके बाद आई ज्वाइन यू। प्रीलिम्स में तो इस बार आप लोगों को थोड़ा सा कोविड की वजह से टाइम ऑलरेडी मिल चुका है। पहले मई में था शेड्यूल आई गेस, अब अक्टूबर में शेड्यूल है, तो अभी से भी 70 डेज है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसमें कैसे करें। नंबर 1 ये है कि अभी तक आपने, आई एक्सपेक्ट कि अभी तक लोगों ने बेसिक प्रिपरेशन कर ली है। जिस बेसिक प्रिपरेशन में जो मुझे समझ में आता है वो रहता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एनसीईआरटीज हैं, ये सब आपने कर लिया होगा, ये मैं अज्यूम करके चलता हूँ। और उसके अलावा आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं, अबाउट 60 डेज, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझ में आती है, जो पर्टिकुलरली कई बार लैकिंग होती है, वो होती है कि टेस्ट सीरीज आप अपेयर हो रहे हैं ऑफ सम सॉर्ट। या तो वो फॉर्मल टेस्ट सीरीज है जो वीकली आपने ज्वाइन कर रखी होगी, उसमें अपेयर होना है, या फिर आपने वो टेस्ट सीरीज का पेपर ले लिया है और उसको अपने शेड्यूल के हिसाब से अपेयर हो रहे हैं उसके अंदर।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस पेपर्स करना, नंबर 1 जो है, जो सुप्रीमली इम्पोर्टेंट है। और उसमें कोई नंबर ऐसा फिक्स नहीं है कि ये 40, 50, 60 कितना करना है आपको, वो आपको देखना है कि आपको इतना करना है, सो दैट कि आप जितने क्वेश्चंस में देखें वो आप, ऐसा नहीं हो कि एक बार देखने के बाद और फिर उस तरह का क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, उसमें एग्जाम में इफेक्टिवली तो आपसे मिस हो जाए। तो आपको रिवीजन ऑफ दोस टेस्ट सीरीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज आप अपने शेड्यूल से बना लीजिए कि भाई हमको हर 3 दिन के बाद एक टेस्ट देना है या 5 दिन में एक टेस्ट देना है, और फिर उन टेस्ट को इस तरह से उसका पूरा जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, वो देखना है कि जो क्वेश्चन हमारे सही या गलत हो रहे हैं वो अगर आगे कभी आता है तो फिर वो मिस ना हो। तो ये तो पहला एजम्पशन है मेरा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी कर लिया होगा, जो बेसिक कोर्स मटेरियल है वो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको उसको भी साथ में करते रहना होगा, अपना एक प्लान बना के कि भाई ये 5 दिन मुझे हिस्ट्री में करके इतने चैप्टर्स कर लेने हैं, ये पॉलिटी में कर लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन टेस्ट सीरीज तो मैं ज्यादा आपको कहूंगा कि उसको अब जो है जितना टाइम बचा है उसमें वो टेकअप कर लीजिए आप। टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, और जितना कर सकते हैं पेपर्स उतना अच्छा है, ऐसे इसमें कोई कमी नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो आपके मटेरियल्स होंगे, कई लोग जो हैं वो अपने नोट मेकिंग करते हैं न्यूज़पेपर से, और जो करंट अफेयर के लिए अलग अलग सेक्शन वाइज, उस सेक्शंस को अगर आपने नोट मेकिंग करी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करी है तो उसके साथ साथ एक आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कोई एक सप्लीमेंट उठा लें किसी भी कोचिंग का, जो आता है ना कंपाइलेशन, जो विजन 360 या इनसाइट, थोड़ा सा डिटेल होता है इनसाइट का, बट विजन 360 बहुत ही पॉपुलर है, आई बिलीव अभी भी होगा, ज्यादातर लोग यूज कर रहे होंगे। तो उस कंपाइलेशन के थ्रू आपको अपना जो ये करंट अफेयर का अलग अलग पार्ट हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस, पॉलिटी, साइंस एंड टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये 2 चीज जो है, बिसाइड्स जो आपका कोर कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो ये 2 चीज है, जो आपके कंपाइलेशन है कोचिंग का, किसी भी एक कोचिंग का, ऐसा नहीं है कि सारे ही कर लेंगे, किसी भी एक को पकड़ के उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको इस लेवल पे पढ़ना है कि उसमें कोई भी चीज हो वो 90, 70, 80% आपको रिकॉल हो जाए। तो उसके लिए आपको कोई भी चीज कम से कम 5, 6, 7 बार पढ़नी पड़ेगी, उससे पहले नहीं हो पाएगा वो चीज। तो टेस्ट पेपर्स एंड कंपाइलेशन, इस पे काफी फोकस रखिए आप, एटलीस्ट 50%, 60% टाइम आपको उस पर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स ये जो है ना, ये जो हम बोल रहे हैं ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब पे एक जैसा आप लिखेंगे। जितने स्टूडेंट हैं जो हैं, सबको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वेयर दे स्टैंड। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये पार्ट तो स्ट्रांग है, मे बी शायद पॉलिटी मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उस पर फोकस करके उसको देख लीजिए। लेकिन ऐसा कोई वन साइज फिट्स ऑल का फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है, इसमें एक बेसिक जनरल थिंग है, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको जो है वो चेंज करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सुइटेबल है। अगर इसमें जो लोग पहले पीटी निकाल चुके हैं उनका लेवल अलग होगा, जो लोग पीटी पहली बार दे रहे हैं उनका लेवल अलग होगा, जो लोग पीटी पहले दे चुके हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे हैं उनका लेवल अलग होगा। ये सब लोगों को अपने हिसाब से इस थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे जिन लोगों ने ऑलरेडी पीटी दिया हुआ उनको मालूम है कि भाई उनका ये सेक्शंस ऑलरेडी कवर्ड है, और इतने क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए पॉलिटी में 15 क्वेश्चंस अबाउट आते हैं तो उनका कवर्ड है पॉलिटी में, तो बार बार पॉलिटी पढ़ना बहुत ज्यादा उनके लिए में भी शायद फायदे की चीज नहीं है। या अगर किसी को लगता है कि उनका हिस्ट्री पार्ट कवर्ड है, या किसी को लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया हुआ, इसमें आपको देखना पड़ेगा नंबर 1 कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप एक पेपर फुल पेपर देंगे और पूरे एनवायरनमेंट बना के देंगे कि भैया 2 घंटे के लिए पेपर है, 2 घंटा मैं बैठ के एक सर्टेन टाइम पे टाइमर के साथ दे रहा हूँ 2 घंटे, उसमें कितने क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और गलत हो रहे हैं तो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहे हैं, एनालिसिस ऑफ दैट पेपर जो आपका अटेम्प्ट है उसका, वो जब आप करेंगे तो आप पहुंचेंगे कि आपका कहाँ स्टैंडिंग है आपकी। और जब आप 2-3 पेपर दे देंगे तब आपको समझ में आएगा कि वेयर डू यू स्टैंड। ये पार्ट जब हो जाएगा तब आप डायग्नोस्टिक्स करने के बाद ही आप आगे बढ़ के जो रिमेनिंग पार्ट है, जो वीक पार्ट है, उसको कवर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप ब्लाइंड खेले कि यार मैं पढ़ते जाता हूँ, लास्ट में जो पेपर आएगा तो देख लेंगे, वो नहीं होगा। वो इफेक्टिवली क्या है कि वो आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं अपने पूरी प्रिपरेशन में कि वो कुछ वर्थ
जो है उसका रिजल्ट आ ही नहीं सकता उस लेवल पे, कभी पता चला। इसीलिए आपको ना, आपको अपने आप को इवेल्युएट करिए कि कहाँ स्टैंड करते हैं, और इसीलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समीर भाई कुछ ऐड करिए आप। देखिए, टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स देने के लिए, और उसमें मेरा सजेशन ये है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज पिक करें, विजन या इनसाइट या कोई भी एक टेस्ट सीरीज को आप एंड टू एंड कंप्लीट कीजिए। होता ये है कि हम मल्टीपल टेस्ट सीरीज उठा लेते हैं सपोज, और हर टेस्ट सीरीज का अपना एक वर्क प्लान होता है जिसके हिसाब से वो मल्टीपल टेस्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने मल्टीपल टेस्ट सीरीज से उनके पेपर्स उठाए, और होता ये है कि हम किसी एक एरिया पे अगर हम उसको प्लॉट करेंगे तो किसी एक एरिया पे ज़्यादा फोकस होंगे 3-4 सीरीज के, तो हमारा एक एरिया तो मजबूत हो गया, बाकी लेफ्ट आउट हो रहा है। तो बेटर ये है कि जो भी टेस्ट सीरीज उठाएं, विजन या इनसाइट या कोई और जो इस वक्त मार्केट में अच्छी चल रही हो, उसको एंड टू एंड कंप्लीट करने की कोशिश करें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको मालूम है 70 डेज हैं, तो यू हैव टू प्लॉट योर गोल्स एंड योर टेस्ट सीरीज ऑन टाइम लाइन कि साहब मुझे हर 3 दिन में या 5 दिन में एक टेस्ट लिखना है, एंड द टेस्ट राइटिंग टाइम शुड बी एग्जैक्टली सेम एज यू विल डू इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्योंकि माइंड का एक ग्राफ होता है, एक पैटर्न होता है, कब वो मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करता है, कब वो मिनिमम एफिशिएंसी में काम करता है। आप अगर अभी आदत आपकी पड़ी हुई है कि आप रात के 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह आप 10 बजे जग रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप यूपीएससी के दिन जब सुबह 6 बजे जग कर 9 बजे पेपर के लिए बैठेंगे तो 9 बजे आपका माइंड फुली प्रिपेयर होगा उस पेपर को एड्रेस करने के लिए। तो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कि 10 से 12 का जो टाइम स्लॉट है उसमें आप फर्स्ट पेपर करिए, और फिर 2 से 4 का जो टाइम स्लॉट है उसमें सेकेंड पेपर कीजिए। ठीक है, तो आपका माइंड ट्यून अप होगा उस चैलेंज को लेने के लिए, उसी टाइम पे, उसी सर्कमस्टांसेस पे, एंड डू इट ऑन रियल टाइम। उस वक्त आपका फोन बंद होना चाहिए, आपका स्टॉप क्लॉक ऑन होना चाहिए, नोबडी शुड डिस्टर्ब यू। थर्ड थिंग कम्स टू एनालिटिक्स कि आप एनालिसिस करेंगे कैसे। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस लेकर चलता हूँ। सपोज 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 35% या 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे विच यू विल बी एबल टू डू करेक्टली, another 35 would be such जहाँ पे आपका 50-50% होगा, और another 30 होंगे जिस पे आपने तुक्के मारे होंगे अगर आप 100% कर रहे हैं, गेस वर्क होगा। तो इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपका 35 कंप्लीट है डेट मीन्स कि वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। अब अनदर 35 को आपको कन्वर्ट करना है। वो 35 कौन से होंगे? जो 50-50% वाले हैं वो आप चूज कर रहे हैं, या जो आपके गेस वर्क वाले हैं? देखिए, गेस वर्क इज अ फील्ड जहाँ पे आपको टोटली उसको एक्सप्लोर करना है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सो मेरा सजेशन ये है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इनटू समथिंग वेरी न्यू विच यू डोंट नो। अगर आप जो 50-50% वाले क्वेश्चंस हैं उस पर अगर आप कंसंट्रेट करें तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट है लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें, या फैक्चुअली आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो बेटर ये होगा कि जो आपके 35 क्वेश्चंस 50-50% वाले हैं उसको आप प्लॉट कर लीजिए कि उसमें हिस्ट्री के कितने, ज्योग्राफी के कितने हैं, इकोनॉमी के कितने हैं, करंट अफेयर्स के कितने, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन लैक कर रही है। तो देन फोकस ऑन दोज पार्ट्स ताकि जो आपका 50-50 है वो आपका 100 पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अनदर 30 यू कैन नॉट डू मच। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप उसमें अगर दिन के 2 घंटे लगाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे तो यू वोंट अचीव मच। तो बेटर ये है कि 50-50 को 100 पे कन्वर्ट कीजिए। थर्ड थिंग कम्स कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है जो मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया था और मैं खुद प्रैक्टिस करता था कि आप अगर लास्ट के 3 साल के या 5 साल के यूपीएससी के पेपर्स उठा लें, तो जैसे प्राइवेट टेस्ट सीरीज होती हैं कि 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको कई बार एकदम क्लियरली पता होता है कि भाई इसमें से ऑप्शन ए या बी सही है, क्योंकि बाकी 3 इररिलेवेंट ऑप्शंस होते हैं। पर यूपीएससी जनरली ऐसा नहीं पूछता है। अगर आप उसके 4 ऑप्शंस देखेंगे तो ईदर दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, या उन बाकी जो ऑप्शंस जो आंसर नहीं है उस वक्त उन ऑप्शन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि यूपीएससी के 3 साल या 5 साल के आप पेपर्स उठाइए, पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 का तो ऐसा नहीं है। पेपर 1 अगर आप उठाएंगे तो जो आपको करेक्ट आंसर मालूम है वो तो सही है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं उनको भी देख लीजिए कि इससे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
तो उससे आपकी ब्रेड्थ ऑफ स्टडी जो है, विड्थ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका प्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। प्लस एनसीईआरटी की मैं कुछ उस पर बुक्स पे या कोर्स मटेरियल पे बताऊंगा। एक न्यू विशाल करके एनसीईआरटी के बुकलेट्स आती हैं, छोटी छोटी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। ठीक है, वो अगर आपको मिल जाए तो उससे आप, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी कितना आप रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, आपने डेली एक कर लिया उसको, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको आप सेपरेट कहीं नोट कर लीजिए या उसी में हाईलाइट कर लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टेक फर्स्ट टाइम करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर वही मिस्टेक आप दोबारा दोहरा रहे हैं तो वो आपकी केयरलेसनेस रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। थर्डली, जैसे करंट अफेयर्स, बहुत से लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा, बहुत से लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको नहीं मालूम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सो न्यूज़पेपर के लिए जैसे इनसाइट्स को मैं खुद फॉलो करता था, तो मैं कल ऐसे ही चेक कर रहा था। इनसाइट्स ने मंथली कंपाइलेशन बना रखे हैं, करंट अफेयर्स के बना रखे हैं, करंट अफेयर्स क्विज हैं, पीआईबी की क्विज हैं उनकी, उसके मंथली कंपाइलेशन है। तो यू जस्ट नीड टू डाउनलोड एंड प्रैक्टिस इट, तो आपका एक बार में पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक जगह कंपाइल्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप ये कि नहीं साहब, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक महीने के न्यूज़पेपर ले आए और फिर उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप नोट मेकिंग करें। सेकेंडली, मेमोरी, आपका जो ब्रेन है वो मल्टीपल उसकी मेमोरीज होती हैं। जैसे पिक्टोरियल मेमोरी है कि आपने जो अपने हाथ से लिखा वो आप रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक पिक्चर आपके जहन में बहती हुई है। लेकिन आपने 30 न्यूज़पेपर एक साथ रखे और उसमें से न्यूज़ पढ़ी, तो देन यू कैन नॉट रिकॉल। हाँ, अच्छा, ये जो लोग भी अभी बोल नहीं रहे हैं, एक्चुअली एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से। सो इस चीज का ध्यान रखिए। प्लस न्यूज़पेपर नोट मेकिंग में, जैसे मैंने कहा था, अगर आप लोगों ने अपना यूपीएससी का वो रखा है सिलेबस इस वक्त फ्री का, सो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी। जैसे आप जीएस पेपर 1 उठाएंगे तो उसमें एक मेन बुलेट होगा और उसके अंदर 4-5 सब पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे चाहिए या मैं कैसे पढ़ता था। लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास होगी, टैबलेट या लैपटॉप या आईपैड, इस टाइप का अगर आपके पास कुछ है तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। मैं न्यूज़पेपर की जगह उसका ई कॉपी सब्सक्राइब करता था, और सपोज एक न्यूज़ आई, आपने उस न्यूज़ को ओपन किया, उसमें पीडीएफ बनाने का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर मैं अलीगढ़ होता तो मैं वो अपना लैपटॉप ले आता और आपको दिखा देता कि मैंने कैसे 2014-15 में वो नोट्स बनाए थे या सेव किए थे। तो बेसिकली उसी पीडीएफ में मैं हाईलाइट कर देता था, और उसको हर पेपर का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था। जीएस पेपर 1 का एक फोल्डर था, 2 का फोल्डर था, 3 का फोल्डर था, 4 का फोल्डर था। उन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स थे, जो कि जैसे जीएस पेपर के अंदर मान लीजिए 10 बुलेट्स हैं, तो हर बुलेट का एक फोल्डर था। अब सपोज मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी आई थिंक पेपर 3 में है शायद। ठीक है, तो इट विल गो टू, जब मैं उस पीडीएफ को सेव करूंगा तो इट विल गो टू जीएस पेपर 3 फोल्डर, सब फोल्डर बुलेट नंबर 10, सपोज अगर वो 10 पे है। ठीक है, जब मैं 10 फोल्डर ओपन करके उसे सेव कर रहा हूँ, मान लीजिए उसमें 4 आर्टिकल और भी पड़े हैं, तो अगर मैं उन आर्टिकल को जिस वक्त सेव कर रहा हूँ उन्हें ओपन करके एक बार देख लेता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाता है। उससे दो फायदे हैं कि एक तो मुझे अपने हाथ से नोट्स नहीं लिखने पड़ रहे रजिस्टर में, तो मेरा जो टाइम बच रहा है उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगा आंसर राइटिंग में, क्योंकि टाइम सबके पास 24 आवर्स है। जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, अगर आप अपने नोट्स देखें, जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं और उसे न्यूज़पेपर से कंपेयर करें, तो 90% ऑफ द टाइम यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग व्हाट इज रिटन इन द न्यूज़पेपर। उससे आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट तब है कि आप उस नोट्स के बेसिस पे अपना आंसर लिखें। ठीक है, तो अगर आप कैटेगराइज करके उसको सेव कर रहे हैं और जब भी आप उस फोल्डर को उठा रहे हैं तो पिछले 3-4-5 आर्टिकल्स जो भी सेव हैं उनको पढ़ ले रहे हैं, तो एक तो क्रोनोलॉजिकल वे में आपको आर्टिकल मिल जा रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर में आपको क्रोनोलॉजिकल उसमें सेम टॉपिक्स नहीं मिलेंगे अगर आप रजिस्टर में नोट मेकिंग कर रहे हैं। सेकेंडली, आपने हाईलाइट किया उस आर्टिकल को पढ़ा है, तो एवरी टाइम यू आर सीइंग इट इन सेम फॉर्मेट, तो आपका जो पिक्टोग्राफिकल मेमोरी है, जो पिक्चर से आप रिकॉल करते हैं चीज़ों को, वो भी चीज़ आपको वहाँ से मिल रही है।
तीसरा जो आपका टाइम सेव हो रहा है उसको आप आंसर राइटिंग में यूटिलाइज करेंगे। तो वो एक चीज ट्राई करके देखिएगा, ई पेपर, द हिंदू या जितने भी पेपर्स हैं सबका ई पेपर आ रहा है, और उसमें जो भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाता है, जो सेवेबल होता है, जिसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका टाइम सेविंग होगा और आंसर राइटिंग के लिए आपको वक्त मिल जाएगा। प्लस अब बात आती है कि प्री के दिन, जैसे आंसर राइटिंग पे मैं थोड़ा सा और बोल देता हूँ कि प्री के अलावा जैसे आप आंसर लिखते हैं तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव पार्ट होता है, एक क्वांटिटेटिव पार्ट होता है। ठीक है, क्वालिटी इज योर कमांड ओवर लैंग्वेज, ठीक है, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, योर सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आती हैं जिसमें टाइम लगता है। ठीक है, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर वोकेबलरी ऑल ऑफ सडन, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वांटिटेटिव चीजें होती हैं जैसे कि चॉइस ऑफ योर पेन। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को स्पीड राइटिंग में प्रॉब्लम है या किसी की हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है, तो यू हैव टू चूज अ पेन दैट इम्प्रूव्स योर एफिशिएंसी। ठीक है, कुछ लोग बॉल पेन से अच्छा लिख सकते हैं, कुछ लोग इससे जेल पेन से अच्छा लिख सकते हैं, या कुछ लोग 0.5 से अच्छा लिखते हैं, कुछ 0.7 से। तो विच एवर पेन यू चूज, ट्राई टू राइट योर आंसर्स ऑलवेज विद दैट पेन, डोंट पिक रैंडमली। ठीक है, जिन लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए ये इशू नहीं है, लेकिन जिनके लिए इशू है ये एक बहुत मेजर इशू होता है। ठीक है, तो चॉइस ऑफ योर पेन शुड बी राइट। ठीक है, उसके अलावा जो आंसर शीट है आप जिस पेपर में लिखते हैं, क्योंकि A4 साइज की बुकलेट आती है, तो यू शुड नो कि A4 साइज की जो बुकलेट आएगी मेरे 10 वर्ड्स कितने स्पेस में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप काउंट करें। और जनरली जब हम यूनिवर्सिटी से फ्रेश निकलते हैं तो हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है जिसको मैं वॉमिट टेंडेंसी बोलता हूँ, कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया जिसके बारे में हमें ज़्यादा मालूम है उसको नहीं, जेल पेन में कोई इशू नहीं होगा। इनका भी क्वेश्चन था, मैं नाम नहीं पढ़ पाया। विच एवर पेन यू चूज वो वाटर प्रूफ होना चाहिए और आपके हाथ पे फिट होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और ब्लू पेन हो कोशिश कीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। ब्लैक पेन आप लें तभी जब आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत लेजिबल है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक हाईलाइट्स योर राइटिंग। तो अगर आप ब्लैक पेन को यूज कर रहे हैं, ब्लैक वाइट इज वेरी कंट्रास्टिंग कलर, वाइट आपकी शीट है, ब्लैक आपका पेन है, तो राइटिंग हैज टू बी वेरी गुड। अदरवाइज आपकी पुअर राइटिंग है तो वो इतना हाईलाइट हो जाएगी कि पढ़ने वाला इरिटेट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चॉइस ऑफ कलर ऑल्सो। सो क्या बोल रहा था, आई जस्ट मिस्ड इट। कैन एनीबॉडी टेल, रिकॉल मी? सर आप पेन के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो पेन का मैंने बता दिया कि चॉइस ऑफ पेन शुड बी, जो भी आप पेन चूज करते हैं वो चूज कीजिए। अगर राइटिंग बहुत अच्छी है तो ब्लैक इंक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा सजेशन ये है कि ब्लैक इंक मत यूज कीजिए। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देगा और फिर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लैक आप कुछ सेंटेंसेस अंडरलाइन भी करते हैं, कुछ फ्रेजेस अंडरलाइन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना मतलब गंदा सा लुक देने लगता है कॉपी में। ब्लू अपीयर्स गुड टू आइज, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, जो शीट है मैंने ये बोला कि वर्ड लिमिट होता है। क्या है कि जब हम यूनिवर्सिटी से नए नए निकलते हैं तो हमें आदत होती है कि अगर हमने एक वर्ड भी क्वेश्चन में देख लिया जो हमें आता है तो हमें उसके बारे में जो भी मालूम है हम सब लिख डालेंगे, डजेंट मैटर कि वो चीज़ पूछी गई है कि नहीं। सो गिव योर टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन एंड एवरी वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग, लाइक इल्यूसिडेट, इल्यूस्ट्रेट, एक्सप्लेन, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, उसका डिक्शनरी मीनिंग देख लीजिए एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, पहली चीज। दूसरा, जब आप लिखते हैं तो शुरू के जैसे आप एक टाइम टेबल बनाइए कि साहब मैं 3 महीने सपोज आंसर राइटिंग करूंगा, तो पहला महीना जो होगा वो क्वालिटेटिव आंसर राइटिंग होगा, जिसमें मुझे फोकस करना है अच्छे कंटेंट पे, वर्ड लिमिट पे फोकस नहीं करना है, ताकि मेरे आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो। सेकेंड मंथ शुड बी ऑन स्पीड राइटिंग, कि साहब मुझे विद इन टाइम लिमिट उस आंसर को लिखना है। ठीक है, कंटेंट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो चलेगा। थर्ड मंथ विच इज योर फाइनल मंथ, ट्राई टू क्लब देम बोथ, कि साहब मेरी क्वालिटी भी आनी चाहिए और स्पीड भी आनी चाहिए।
उसका तरीका ये है कि विजुअली देख के आपको पता चलना चाहिए कि आंसर शीट में आप कितने स्पेस में कितने वर्ड्स लिख रहे हैं। अब सपोज 15 मार्क्स और 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं एज फार एज आई कैन रिकॉल। तो 15 मार्क्स में अराउंड 150 टू 180 वर्ड्स के बीच, मतलब +10 -10 आप लिख के चलिए कि नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 10 कर दीजिए, तो उतने नंबर ऑफ वर्ड्स आपको लिखने हैं। उसमें +10% -10% की रेंज होनी चाहिए। तो जैसे मेरा होता था, तो आई कैन टेल यू लाइक कि अगर मैंने ये हाथ इतना कॉपी के ऊपर रखा कि, तो आई नो कि इतने स्पेस में आई विल राइट नॉट लेस देन 20 वर्ड्स एंड नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। तो जिस वक्त मैं लिख रहा हूँ, आई नेवर यूज टू काउंट। मुझे मालूम है कि अगर मैं पेज के 3rd-4th क्वेश्चन पे हूँ, तो आई हैव रिटन अप्रोक्सीमेटली 65 to 70 वर्ड्स। तो मुझे कितना और जाना है, तो विजुअल कैलकुलेशंस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप लास्ट टाइम काउंट करने नहीं बैठेंगे, या आप लिखते चले गए और एकदम से आपको याद आया साहब यहाँ तो 100 वर्ड्स लिखने थे और मैं 200 वर्ड लिख गया। क्योंकि जो आपने टाइम कट किया उस आंसर में, वो आपको कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा, कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। थर्डली, जैसे आंसर राइटिंग इज अ डेली एक्टिविटी। मैंने प्री से एक दिन पहले भी आंसर लिखा है, प्री वाले दिन भी मेरे आंसर्स हैं। ठीक है, दैट इज ऑन इनसाइट्स ऑन इंडिया। इफ यू ओपन द मैच इट विद द प्री डेट्स, यू विल फाइंड माय आंसर्स ऑन इनसाइट्स पोस्टेड ऑन इनसाइट। तो इट इज नॉट कि साहब आज प्री है तो मैं मेंस को भूल जाऊंगा, बिकॉज इट इज मेंस जिसके मार्क्स काउंट होते हैं। प्री इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और तो सजेशन यही है कि प्री के लिए आप तब अपीयर हो जब आपका मेंस तैयार हो, या एटलीस्ट आप 60-65% की रेंज पे मेंस को एड्रेस कर चुके हो। क्योंकि लोग प्री पे बहुत फोकस करते हैं, साहब प्री निकल गया, अब एकदम से दहशत आई कि साहब, क्योंकि जब प्री आप दे के आएंगे और प्री में फोकस रहें, तो फिर अगले 10-12 दिन आप सेलिब्रेशन भी करेंगे कि साहब मैंने तो क्वालिफाई कर लिया प्री। फिर एकदम से समझ में आता है कि अब तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं मेंस के लिए, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेंस की तैयारी कीजिए, आखिरी के 2-2.5 महीने प्री पे 60% फोकस, मेंस पे 40% फोकस, ऐसे रख लीजिए। ये चीज कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें तो बताइए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अदरवाइज फिर मैं आपको आंसर करूँ। जी सर मुदस्सिर अस्सलाम वालेकुम सर। भाई। जी सर बताएं। हमें ये पूछना था कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो A4, ये फोटो कॉपी वाले पेज होते हैं A4 साइज वाले, जी और जो एग्जाम में हमें कॉपी मिलती है सर उसके पेज अलग होते हैं, क्वालिटी उसकी अलग होती है। तो कोई ऐसा पेज होगा जो हमें वही वही वाली क्वालिटी का पेज मिल जाए? नहीं, आई थिंक मोर और लेस सेम क्वालिटी होती है। A4 साइज भी उनका होता है और मार्जिन्स भी होते हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास फोटोकॉपी मशीन है, तो किसी एक पेज पे आप यूपीएससी का जो आंसर कॉपी होती है, सैंपल कॉपीज बहुत से कोचिंग वाले देते हैं। ठीक है, तो किसी एक सैंपल कॉपी पे आप मार्जिन्स को प्लॉट कर लीजिए और उसको फोटोकॉपी मशीन से उसके मल्टीपल सेट्स निकाल लीजिए। तो जब भी आप आंसर लिखने के लिए बैठें, तो उसी स्पेस के अंदर लिखना है जो एक्चुअल यूपीएससी स्पेस से मैच करे, ताकि आप एक्चुअल कंडीशंस को रेप्लिकेट कर सकें। ठीक है, और देखिए अब इतना स्पेसिफिक मत जाइए कि पेपर की क्वालिटी 1-to-1 मैच कर दी है। ठीक है, दैट इज वेरी स्पेसिफिक। जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन कंट्रोल योर पेन। ठीक है, यू कैन कंट्रोल योर टाइमिंग, यू कैन कंट्रोल योर मेंटल एफिशिएंसी बाय अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन एट द सेम टाइम एज पर यूपीएससी टाइमिंग। सो उन चीज़ों को आप फोकस कीजिए। अब आप सोचें जैसे मेरा अपना, ठीक है, एंड देन आई क्वालिफाइड। सो अब मैं फोकस करने लगूं कि साहब मेरा सेंटर कहाँ पड़ेगा। हमने किया भी, हमने मुदस्सिर भाई लोगों ने कि हमें पहले ये अंदाजा था कि जो लोग पहले दिन यूपीएससी का फॉर्म भर देते हैं उनको यूपीएससी सेंटर मिलता है, और जो बाद के करते हैं उनको रोहनी मिलता है। और रोहनी हमदर्द स्टडी सर्किल से ऐसा था जैसे इंडिया से पाकिस्तान जाना। फिर सुबह हम लोग 6 बजे निकलते थे और 8:30-9 तक वहाँ पहुँचते थे। फिर 5:30 बजे पेपर खत्म होता था, 5:30 बजे तक हम लोग कैब में बैठते थे, 9-9:30 बजे तक हम वापस पहुँचते थे हम। तो इसलिए हमने किया कि नहीं साहब, हम लोग तो जैसे ही फॉर्म आएगा सब लोग फिल कर देंगे ताकि हमें यूपीएससी मिल जाए। उस साल यूपीएससी ने क्या किया कि जिन्होंने शुरू में पेपर दिए थे उनको फिर रोहनी फेंक दिया, तो हम लोग फिर रोहनी पहुंच गए। तो जो लोगों ने बाद के भरा था वो यूपीएससी आ गए। तो ये फैक्टर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा एक सेंटर पड़ा जहाँ पे मुझे LKG के बच्चे जहाँ बैठते हैं उस क्लास में मेरी क्लास पड़ी। अब उनका टेबल चेयर ऐसा था कि टेबल जो था वो मेरे थाई के ऊपर रखा हुआ था।
सो अब यू कैन नॉट कंट्रोल दोज थिंग्स, या फैन है उसमें से क्रेकिंग वॉइस आ रही है, यू कैन नॉट कंट्रोल, या बाहर एक मेंस के वक्त मैं और नूर एक ही रूम पे थे उस वक्त, एक ही सेंटर में, तो किसी की शादी बारात थी, अब वहाँ पे ढोल और वो सब बैंड्स एंड्स बज रहे हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल दोज फैक्टर्स, सो डोंट गो इनटू वेरी स्पेसिफिक, ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। जी मैं आई ऐड वन थिंग, जी मेरे सर। ख्याल से ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल आप लोगों से वैसे भी गलत है। जी यू सर। आस्क दिस टू द डायरेक्टर आरसीए। मेरा सर। इस पे जवाब ये है कि यू ट्राई टू फाइंड आउट, ऑल ऑफ यू, आप 20-25 लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप शहर में देखिए, अगर कहीं भी वो कागज मिल रहा होगा, किसी भी कीमत पे मिल रहा होगा, यू विल गेट इट। नहीं मिल रहा है तो बात अलग है। ऑलरेडी हमारे पास है पॉसिबल, वी विल एंश्योर टू फैसिलिटेट दिस। सर ऑलरेडी हमारे इसमें पास है सर एक्सक्यूज मी, इसमें सर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इटसेल्फ डज नॉट फोकस सो मच, उनका सप्लायर एक बार कोई और है, अगली बार कोई और, आप इस बार की क्वालिटी मैच कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम सप्लायर कौन है यू डोंट नो। But So, I have promised my kids, I have promised my boys and girls के whatever you ask for, I'm there. RCA is there. We are in this. सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं कहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, as in आपको इवैल्यूएट मत करिए कि ये सिली क्वेश्चन है या नहीं है। अभी आज के इनफॉर्मल डिस्कशन में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग किसी का सवाल था हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। स्ट्रेस किस चीज का है आपको, आप बता सकते हैं, यू कैन ओपन योर माइक एंड स्पीक, तो देन हम उसको आंसर करेंगे कि आपको स्ट्रेस किस चीज का है। Actually, this I would also request कि instead of writing your queries in the chat box, आप वैसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Please, जिसने भी आदिल मुजफ्फर, please explain your question. सर Unmute yourself. Please go ahead. Sir, on this stress part, actually, I also want to say something. And मेरा ऐसे क्वेरी इस चीज से रिलेटेड है कि I started preparation, लेकिन प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मुझे एंजाइटी इतनी ज्यादा होती थी कि मैं अभी तक I have given my 2 attempts and appeared मेंस ट्वाइस, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से नहीं किया। I was doing things bits and pieces, and just because of my exam anxiety, which converted into depression after multiple failures, and I am at a stage where I want to think whether it is working for me or not. और सर एक चीज और भी है कि I took this decision of preparing for civil services, लेकिन कहीं ना कहीं deep down in my mind I am not very clear कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसकी वजह से सर in long term I can't remain focused for this preparation. तो मतलब मैं इन चीजों को जो कि मेरे माइंड में चल रही है, मैं उसको कैसे क्लैरिटी करूं, और क्या आपकी प्रिपरेशन टाइम में भी स्ट्रेस या एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी आई थी, तो आपने कैसे हैंडल किया? जी नोमान नाम है आपका? सर वो नोमैड, मतलब मैंने आइकन नहीं बनाया, वैसे तारिक नाम है सर। अच्छा, तारिक साहब आप ही हैं, डायरेक्टर साहब बता रहे थे आपके बारे में। तारिक साहब कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर दिस विल बी माय 3rd अटेम्प्ट। इतनी जल्दी घबरा गए? देखिए मुझमें और मुदस्सिर भाई में हम दोनों मतलब मुदस्सिर वाज अ ईयर जूनियर टू मी एमयू एंड अ ईयर सीनियर टू मी इन सर्विस। ठीक है, हम दोनों पोल अपार्ट हैं। ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई वाज अ वेरी बैड गाय इन एमयू। ठीक है, एंड वी बोथ क्वालिफाइड। नहीं जमीर भाई, ये तो आपका वो है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पोल अपार्ट नहीं, इट इज एक्चुअली राइट। देखिए इफ यू गो विद माय प्रोफाइल, मैंने बहुत सी चीजें नहीं लिखी हैं जो कि अल्लाह का शुक्र है आसिया मैम को या डायरेक्टर साहब को भी नहीं पता है। आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, आई वाज इनटू बॉडी बिल्डिंग, आई वाज इनटू हॉर्स राइडिंग। ठीक है, आई वाज द पर्सन हु पिक्ड अप न्यूज़पेपर फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो मुदस्सिर क्योंकि लिटरेरी क्लब में भी मेरे ख्याल से थे और उनका ओरिएंटेशन ऐसा है कि वो पढ़ने के लिए है। लेकिन हम दोनों में जैसे मुझमें था कि आई नेवर फेल्ड एवर इन माय लाइफ बिफोर अपीयरिंग इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैंने लाइफ में जितने भी एग्जामिनेशंस दिए थे या और भी जो चीज़ करी थी, ठीक है, आई ऑलवेज सक्सीडेड। तो आई इंटर्ड इनटू सिविल सर्विसेज डोमेन की साहब मैं आज तक फेल नहीं हुआ हूँ। तो
ये भी निकल जाएगा, ऐसी क्या बात है। और मुदस्सिर भाई को शायद एक अटेम्प्ट लेके बीटेक उनको 1 साल ड्रॉप करना पड़ा था, तो उनको थोड़ा सा फेलियर का एक अंदाजा पहले लग गया था, तो वो इस रियलिटी के साथ इंटर किए थे, इसलिए वो मुझसे 1 साल पहले निकल गए और मुझे 1 साल ज़्यादा लगा, क्योंकि अल्लाह ताला ना आपको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। और तीसरा अटेम्प्ट इज नॉट बिग डील, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ अटेम्प्ट। देखिए यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सबसे अहम 2 चीज़ें होती हैं। एक तो यूपीएससी का एग्जाम आपसे आपकी मुलाकात करवा देता है, उसका मतलब ये होता है कि आप क्या हैं उसकी सही पहचान आपको हो जाए। दूसरा, जब सही पहचान हो जाए तो आपको क्या बनना है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। बहुत से लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उनके वालिदैन ने कहा है, या यूपीएससी की तैयारी करने वालों को इज्जत बहुत मिलती है, या गांव और मोहल्ले वालों में बड़ा नाम होगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको अपने दिमाग में ये क्लैरिटी लेके आनी है कि साहब मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, क्या वाकई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, अगर आपको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है तो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। और एंग्जाइटी, सेंस ऑफ अनवर्दीनेस, ठीक है, कि मैं फेल हो जाऊंगा, कि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, कि मैं दुनिया का सबसे नालायक इंसान हूँ, ठीक है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये हम सब ने फील किया है, ये आप अकेले नहीं फील कर रहे। यूपीएससी का एक प्रोसेस है, एक मिल है, उस मिल से जब हम पास होते हैं तो वो आउटपुट आने से पहले ये एक प्रोसेस है जिससे हर इंसान गुजरा है। ठीक है, मैं भी गुजरा हूँ, मुदस्सिर भाई भी गुजरे होंगे, और जितने भी आप यूपीएससी क्वालिफाइड लोगों से मिलेंगे उन सब से आपको यही चीज़ मिलने को पता चलेगी। और ये सिर्फ यूपीएससी के साथ नहीं है, ठीक है, आप सचिन तेंदुलकर से जाके मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि सचिन साहब आप कैसे इतने बड़े दुनिया के बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन बने, तो पहले दिन से वो ऐसी बैटिंग नहीं कर रहे, उनके भी बॉल हेलमेट पे लगी है, वो भी आउट हुए हैं, ठीक है, उनको भी कोच की डांट पड़ी है, उनसे अच्छे प्लेयर्स भी थे जब वो आए। ठीक है, तो प्रोसेस से घबराना नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो आप ये दिमाग में मत लाइए कि नहीं मेरे अंदर कोई कमी है, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप कहाँ हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ, 2 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक ये है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, उसको फेनमैन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, फेनमैन टेक्निक में ये है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो आप उसको एक 6वीं क्लास के बच्चे को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप उसको वो चीज़ समझा पा रहे हैं तो आपको वो चीज़ आती है, और अगर आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं तो आप नोट कीजिए कि आप कहाँ कहाँ नहीं समझा पा रहे हैं, आप दोबारा जाके बुक को कंसल्ट कीजिए और उसको करिए। ठीक है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, यूपीएससी की आंसर चेकिंग जो होती है वो मैं या मुदस्सिर भाई जाके आंसर नहीं चेक करते हैं, वो आसिया मैम चेक करेंगी या इमरान सर चेक करेंगे, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं उनको ही बुलाया जाता है। और हम सब इंसान हैं, हमारी एक लिमिट होती है, एक बार हम स्टेबल हो गए तो हम अप स्किलिंग के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट नई नई चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, तो आंसर राइटिंग में हमेशा वो चीज़ लिखिए जो कि स्टैब्लिश्ड हो, एकदम आउट ऑफ द वर्ड जाके कोई कॉन्सेप्ट मत दीजिए। ठीक है, वरना आपको आउट ऑफ द वर्ड मार्क्स मिलेंगे, वो 10 आउट ऑफ 10 भी हो सकते हैं और 0 आउट ऑफ 10 भी हो सकते हैं। अगर आपके प्रोफेसर साहब जो उस वक्त कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो भी उतने अपडेटेड है जितनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है, तो आप दोनों क्लिक कर गए, आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल गया, जो कि बहुत कम होता है। ठीक है, हम में से कोई, जैसे मैं यूपीएससी की जिस वक्त प्रिपरेशन कर रहा था या मुदस्सिर भाई कर रहे थे, हम लोग जिस शिद्दत से न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आज के वक्त में अगर आप हमसे सोचे तो वी डोंट हैव कंटेंट विद अस, क्योंकि हमारे गोल्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि उनको ऐसी चीज़ें नहीं दे देनी कि जो उनको तकलीफ दे दें। ठीक, दूसरा जो आपको अपने आप को पहचानने की बात है, अब आपको ये अंदाज़ा लगाना है, जैसे एक बिल्डिंग है, अब उसमें टॉप फ्लोर जो है वो 10th फ्लोर है, वो मान लीजिए कि यूपीएससी का रिजल्ट है, जो 10th फ्लोर अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हो जाएंगे। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि भाई आप इस वक्त खड़े कहाँ हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में खड़े हैं तो आपको पूरे 10 फ्लोर्स कवर करने हैं, अगर आप 9th में हैं तो आपको 10th में जाना है, एक ही फ्लोर में जाना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना है। ठीक है, और उसके लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन बॉडी बिल्डिंग, आप लोग कितने लोग जिम जाते होंगे, कितने नहीं जाते होंगे, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल लोडिंग। हेलो, ठीक है, इंक्रीमेंटल लोडिंग में ये होता है कि फर्स्ट डे अगर आप गए तो मान लीजिए आपने
5 kg का डंबल लिफ्ट किया, ठीक है, आपका टारगेट है कि साहब मुझे 25 kg का डंबल लिफ्ट करना है, तो यू कैन नॉट लिफ्ट 25 kg डंबल ऑन द सेम डे। आप लिफ्ट करेंगे, अगले दिन क्रैम्प्स आ जाएंगे, मसल इंजरी एंड यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड। तो बेटर ये है कि प्रोग्रेसिवली, कि अगर आप 1 घंटे पढ़ सकते हैं तो उसको 1 घंटे 10 मिनट बनाइए, 1 घंटे 10 से 1 घंटे 20 मिनट बनाइए। हमें डिप्रेशन एंग्जाइटी तब होती है जब हमारी आदत 1 घंटे पढ़ने की है और हम उसे एकदम से 10 घंटे बनाना चाहते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। सो इंक्रीमेंटली इंक्रीज कीजिए, आप अपने आप को भाई सबसे पहले एनालाइज कर लीजिए कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, और मुझे कहाँ पहुँचना है। उसके लिए एक पाथ है, उस पाथ में आप ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। आप फर्स्ट डे एकदम एक्सपोनेंशियली अगर अपना रूटीन को या अपना स्टडी को चेंज करेंगे तो वो आपके अंदर 100% डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। मुदस्सिर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, इसमें क्या है, जैसे समीर भाई ने ऑलरेडी कह दिया कि, और मैंने शुरू में बताया था कि आप और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जिस स्टेज पे आज हैं उसी स्टेज पे हम सब लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या सक्सेसफुल हुए हैं वो पहले थे, कुछ सालों पहले। तो आई एम श्योर कि पता नहीं आपको सरप्राइज भी होगा कि मैं जब हमदर्द स्टडी सर्कल में रहता था तो वहाँ पे सिंगल रूम है, मैंने पता नहीं समहाउ और दी अदर मुझे लोग थोड़ा सा अपना इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए यूज किया करते थे वहाँ पे। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है ये और मैं जानता हूँ कि बहुत लोग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं टू द एक्सटेंट कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते अपनी तैयारी, या जितनी उनकी तैयारी है उस हिसाब से वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। बिकॉज आई एम श्योर और आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन उनका जो आउटपुट है वो नहीं हो पा रहा है उतना अच्छा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड जब वो एग्जाम के प्रोसेस में होते हैं, या तो उस दिन एग्जाम के दिन या फिर ओवरऑल पीरियड में। तो इसलिए ये तो आप मत ही समझिए किसी भी तरह से कि आपको यूनिक है इस मामले में। जो प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट हैं वो इस एग्जाम के लिए हो या किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिग्रीज का फर्क हो सकता है लेकिन सबको स्ट्रेस है। आप ये समझिए ना कि जो लोग यूपीएससी में तो सीरियस कैंडिडेट कितने हैं, 50,000 होते होंगे, 2.5 लाख लोग बढ़ते हैं, 4 लाख बढ़ते हैं, लेकिन इफेक्टिवली सीरियस स्टूडेंट 50,000 होते होंगे। लेकिन आप नीट के स्टूडेंट्स देख लीजिए, पीजी में जो अपियर हो रहे हैं, नीट पीजी में मेडिकल के लिए या एम्स के एग्जाम के लिए जो लोग अपियर हो रहे हैं वहां पे तो और कम सीट्स हैं, 5 सीट के लिए आप कर रहे हैं। या आप अलीगढ़ में अपना देख लीजिए, एमएससी बायोटेक में 8 सीट हैं टोटल, सिर्फ 8 सीट के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग जगह से। तो कहाँ से एंजाइटी ब्रीड हो रही है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि सब लोग फेस करते हैं, दूसरा ये एंजाइटी हो क्यों रही है। अगर एंजाइटी इस वजह से हो रही है कि या मुझे नहीं करना चाहिए था ये एग्जाम शुरू तैयारी, क्या मैं इस लायक हूँ या नहीं, तो जैसे समीर भाई ने कहा कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग जो हैं जो अभी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे आंसर उनकी क्वालिटी हो, बट वो और आपको लग रहा है अरे यार इसने भी मेरे साथ ही तैयारी शुरू की थी, तो जरूरी नहीं है कि उसने आपके साथ ही तैयारी शुरू की। उसने हो सकता है आरसीए में अपना टेन्योर आपके साथ शुरू किया हो, लेकिन उसकी तैयारी हो सकता है 5th क्लास स्टैंडर्ड से स्टार्टेड, बिकॉज उसके घर का जो उस तरह का माहौल होगा या उसको जो पढ़ाया गया होगा कि भाई तुम्हें न्यूज़पेपर जो है वो रोज पढ़ना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर में न्यूज़पेपर आते हैं, उनको बोला जाता है कि आप रोज पढ़िए न्यूज़पेपर 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए आपको समझना जरूरी है। जब तक वो आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझेंगे तब तक ये एंजाइटी में ब्रीड होती रहेगी और आपको लगेगा कि आप जो है वो उस लेवल पे नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि वो लेवल जानिए आप कहाँ पे हैं आप, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना एफर्ट जो है वो रीडिजाइन करना पड़ेगा। नंबर 1 ये बात हो गई कि लेवल जानने के बाद। दूसरी बात ये है कि ये एग्जाम का प्रोसेस जो है वो ऐसा नहीं है कि उसमें आप कोई चीज शॉर्टन कर लेंगे पीरियड को। पीरियड जो है वो 2 to 3 इयर्स वो लगना ही लगना है। इधर वे सीरियस तैयारी का पीरियड इसमें 2 to 3 इयर्स तो मिनिमम है, क्योंकि साइकिल ही अगर आप देखेंगे एक साइकिल आपका 1.5 साल तो खा जाता है ना। अगर आप पीटी देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे तो 1.5 इयर्स तो सीधे सीधे चले गए आपके। और फिर मोस्ट ऑफ अस फेल इन फर्स्ट, चाहे वो प्रीलिम्स के स्टेज पे हो या मेंस के हो या इंटरव्यू के स्टेज पे हो। वेरी फ्यू
एस्पिरेंट्स वुड बी सक्सेसफुल, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाले हैं। और वो भी सक्सेस का मतलब अगर आप कहते हैं कि अगर मुझे फर्स्ट चॉइस सर्विस मिल जाए तो मैं सक्सेस मानता हूँ, तो फर्स्ट चॉइस सर्विस जो है वो बहुत कम लोगों को मिलेगी। तो मोरलेस सब लोग एक ही बोट में हैं कि अगर उनको फर्स्ट चॉइस सर्विस नहीं मिली तो वो फिर अगली बार अपीयर होंगे, फिर वो 1 साल लेगा पूरा प्रोसेस। सो सब लोग मोरलेस जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो एक ही बोट में है। उनको एंजाइटी भी होगी, उनको स्ट्रेस भी होगा, उनको ये सारी चीजें होंगी। इशू इज एंड सॉल्यूशन इज कि आपको मैनेज कैसे करते हैं उस स्ट्रेस को। तो मैनेज करने के कुछ तरीके तो समीर भाई ने बताए। चलिए वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे, अभी स्ट्रेस पे बात हो रही थी। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या चीजें हो सकती हैं? तो आपको एक तो पहली चीज है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन आपने सोचा कि मैं बहुत पढ़ लूंगा 15 आवर्स 18 आवर्स और फिर अगले दिन 2 दिन 4 दिन जो है मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, या मुझसे हो नहीं पा रहा क्योंकि मैं थक गया 2 दिन लगातार मैंने मैं एक लड़के को जानता हूँ अंडर स्टडी सर्कल में, समीर भाई। अच्छा समीर भाई के बारे में बता दूं, समीर भाई हम सब में से बहुत ज्यादा पढ़ने वाले थे, मतलब एटलीस्ट मेरे से तो ज्यादा ही पढ़ने वाले थे। और कंटिन्यूअसली जैसे उन्होंने बोला ना कि पीटी के दिन भी आके उनका आंसर लिखने का था, इतना डिसिप्लिन मैं कभी नहीं था कि मैं पीटी के एक दिन पहले भी आंसर लिख दूं और पीटी के दिन भी आंसर। तो इनफैक्ट आंसर राइटिंग जो है, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की, वो मेरी सबसे वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट लिंक था मेरी तैयारी के। तो इस तरह का लेवल होना डिसिप्लिन का, समीर भाई लेवल का, वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आप कौन हैं। अगर मैं समीर भाई को एकदम से इवेल्युएट करने लगूं और कोशिश करूं कि जैसे समीर भाई 15 आवर्स पढ़ रहे हैं वैसे मैं पढ़ लूं, या कोई XYZ कोई और जो 15 आवर्स 14 16 आवर्स लाइब्रेरी में होता है उस तरह से कर लूं मैं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं भी शायद मेरा लेवल वो हो जाए कि मैं कुछ दिनों में तैयारी छोड़ दूं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को भी समझें कि भाई आपकी कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए आप, एक लड़का था जो समीर भाई की नकल में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसने हमदर्द स्टडी सर्कल में सोचा कि मैं आज तो मैं अब 48 आवर्स पढ़ूंगा, तो वो लगातार 36 आवर्स अराउंड बैठ गया, मे बी शायद 2-4 घंटे के लिए उठा होगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी, और वही हुआ, उसकी तबीयत खराब हुई, फिर वो हॉस्पिटलाइज हुआ और फिर वो तैयारी उसकी बहुत मेजर सेटबैक हो गया उसकी तैयारी। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सबकी कैपेसिटी अलग है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबका पढ़ने का तरीका भी अलग है। जैसे मैं नोट मेकिंग उस तरह से नहीं कर सकता हूँ जिस तरह से मे बी समीर भाई कर सकते हो या दूसरे लोग कर सकते हो, या जैसे अभी ये क्वेश्चन आया कि इज इट बेटर टू बी ए नाइट आउल और या डे टाइम में पढ़ने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको ये समझना जरूरी है कि आपका तरीका क्या है, कब आप ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रात में बैठ के तैयारी होती है, सुकून होता है, चारों तरफ कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है, तो मैं फर्स्ट हाफ अगर सो जाऊं और सेकेंड हाफ लंच के बाद से पढ़ना स्टार्ट करूँ और रात भर पढ़ूं, तो वो मुझे सूट करता है, तो वेल एंड गुड। इसमें कोई एक तरीका है ही नहीं। इसलिए मेरे ये समझिए आपको कि आपको क्या सूट करता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे पहले बात हो रही थी कि भाई आपको एग्जाम तो 9 बजे सुबह से देना है ना, 11 बजे तक, या 10 साढ़े 9 से 11:30 तक एग्जाम देना है, तो आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप रात में पढ़ने वाले हैं, जनरली आप रात में पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम्स दिन में होते हैं और आप एक्टिव रात में होते हैं ज्यादा, तो आपको एग्जाम से कुछ दिनों पहले, मे बी 15 डेज 20 डेज पहले, आपको अपना शेड्यूल में इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि आपकी जो एक्टिव लाइफ है वो एक्चुअली सुबह 9 बजे हो। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको नींद आती रहेगी, या आपको रात में जिस दिन आपका एग्जाम है उस रात में आपको नींद नहीं आएगी, और अगले दिन जो है आप उस वक्त सोते हुए फील करेंगे या एक्टिव नहीं होंगे, और आपका जो पढ़ी हुई चीज है वो भी आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर टायर्ड जब आप एग्जाम लिख रहे हैं। तो ये रात पढ़ना दिन पढ़ना इशू नहीं है, इशू है कि आपको अपना समझना कि कौन सा तरीका आपको सूट करता है, और ये उस पे स्टिक करना है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि समीर भाई ने ये बोला था जी तो हम अब शिफ्ट कर देंगे, अब सब कुछ अपना सब कुछ जो है एकदम से 360 डिग्री या 180 डिग्री चेंज हो जाएगा और मैं दूसरा कोई इंसान बन जाऊंगा। आप जो है वही रहेंगे, इसमें ट्वीक करने की बात है, थोड़ा सा जो आपको सूट करता है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस पे काफी सारी चीजें होंगी, स्ट्रेस सबको होगा, आपको मैनेज करना होगा उस चीज को, और उसमें 1-2 चीज इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है,
कि जो चीज आप कर रहे हैं वो ही थोड़ी चीजें रोज करें। अगर उसमें इंक्रीज करना है तो इंक्रीमेंटल, जैसे बताया था भाई, इंक्रीज करें। फिर आप स्टिक करें शेड्यूल पे, जो आपका शेड्यूल है वो उस पे स्टिक करें। ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन आप बोल रहे हैं कि मैं अब 3 बजे से पढ़ूंगा रात के 4 बजे तक। ऐसे नहीं हो सकता। आपको अपना एक शेड्यूल बनाइए, उस पर स्टिक करिए। दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी का एस्पेक्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट दिन के हाफ एन आवर, 1 घंटा ऐसा लेना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, जो जिस पॉइंट पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, चाहे वो किसी से बात करके रिलैक्स हो या कोई ऐसी एक्टिविटी टेकअप करके हो, रनिंग हो, एक्सरसाइजिंग हो, कुछ और हो, जो बेसिकली आपकी पढ़ाई डायरेक्ट नहीं हो। आप वॉक कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई के बारे में बात करते हुए वॉक कर रहे हैं, दैट्स वो भी एक रिलैक्सिंग तरीका हो सकता है आपको अपने आप को उस रट से निकालने के लिए जो बहुत आपको स्ट्रेसफुल बना देता है। और ये समझना है कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ये चीज 2 महीने के लिए बहुत ज्यादा 18 घंटे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा कोई चीज, और उसके बाद नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना तो 1-1.5 साल है ना। आप अगर पीटी में अपेयर होना है, आपको मेंस इंटरव्यू, तो आपको इवेंचुअली 1 to 1.5 ईयर्स तो प्रैक्टिकली पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके लिए आपको ऐसी शेड्यूलिंग करनी चाहिए सो दैट कि आप बर्न आउट ना हो जाए। बर्न आउट होने से बचना भी जरूरी है, और उसके लिए आपको संडेज में से या कुछ वीक में 1 दिन या हाफ डे या 2 घंटे ऐसे भी निकालने पड़ेंगे जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये सब भी जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी एग्जाम। ये इसमें भी करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें करके ही आप स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे। और सब लोग एक बोट में है, सब लोगों को रोना आता है। हम लड़कों को जनरली सिखाया जाता है रोना वोना नहीं है, लेकिन इवेंचुअली लोग जो है एग्जाम रुला तो देता ही है आपको किसी पॉइंट पे। तो कोई बात नहीं है, रोना है, फिर उसके बाद आंसू पोंछ के फिर लग जाना है। जब मैं पहली बार इंटरव्यू में फेल हुआ था पहले अटेम्प्ट में 2011 के एग्जाम में, तो उसके बाद इंटरव्यू के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट और पीटी में कुछ अबाउट 17 दिन का फर्क था। तो 17 दिन का फर्क है तो आपके पास मातम मनाने का भी बहुत टाइम नहीं है। आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है, आप फेल होते हैं, उस दिन को आप में भी शायद मातम मनाने में निकालते हैं, बैठते हैं 4-5 जो आपके जैसे लोग हैं उनके साथ, फिर बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हैं, खत्म करते हैं, मट्टी डालते हैं, फिर अगले दिन से पढ़ने में लग जाते हैं। फिर आप 15 डेज बाद आपका पीटी है। तो मैं अपना बता दूं कि मैंने जो है वो पीटी दिया है, ऐसे 2 बार ऐसा हुआ है जब मैं फेल हुआ हूँ फाइनल एग्जाम, फाइनल रिजल्ट में 2011 में और 2012 में, और फेल हुआ हूँ मैं 11 नंबर से और 13 नंबर से फाइनल रिजल्ट में, और उसके 15 दिन बाद फिर से मेरा एग्जाम है, फिर से पीटी है। तो आपको वो, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई दूसरे, वैसे मैंने बताया ना सब एक ही जैसे लोग हैं, तो हमें भी, हमारा भी मेंटल स्ट्रेस तो होगा, लेकिन आपको मैनेज करना है। आपको उसको देखना है कि भाई यस, पास तो 1000 लोग हुए हैं ना फाइनली, या पीटी में जब होंगे तो 15,000 लोग पास हुए हैं, बाकी 50,000 में से तो कम से कम 35,000 लोग फेल हुए हैं ना पीटी के लेवल पे, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। बाकी 2.5 लाख 4 लाख का जो नंबर है वो सब तो इधर उधर की बातें हैं। जो सीरियस कैंडिडेट है वो 50,000 है, 60,000 है, उसमें से 45,000 35,000 लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आधे नंबर से हो रहे हैं, 1 नंबर से हो रहे हैं, वो एनालिसिस की अपनी सेपरेट बात है, बट ब्रॉडर बात ये है कि इतने लोग फेल हो रहे हैं और आपकी जैसे सीरियस थे वो, तो फिर से वो उनका ऑप्शन क्या है, उनको फिर से अगर उनका अटेम्प्ट बचा हुआ है तो उनको टेकअप करना पड़ेगा तैयारी, फिर से जो भी चीजें अपने आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि भाई ये वीकनेस रह गई, ये चीजें रह गई, बट मोटी बात ये है कि उनको तैयारी करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपने इतना इन्वेस्ट कर लिया तो आप भाग नहीं सकते। और जहां तक सचिन तेंदुलकर को स्ट्रेस होने की बात है, मैंने एक इंटरव्यू में उनका देखा था, वो बोल रहे थे कि भाई जब भी कोई इम्पोर्टेंट मैच होता है उस रात में मैं सो नहीं पाता एंजाइटी से। अच्छा, सचिन तेंदुलकर तो बहुत ऊपर की बात है, मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं आज तक ठीक से सोया नहीं हूँ एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम से पहले, मतलब जो भी सीरियस एग्जाम है, पीटी हो, मेंस हो, उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे 6 आवर्स या 8 आवर्स की नींद आ गई, वो 2 घंटे 3 घंटे साउंड स्लीप हो जाए वही बहुत है, बाकी टाइम लगता है कि दिमाग जगा हुआ है। जब भी आप सीरियस तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि रात में जब आप सोने जा रहे हैं तो आप पूरी तरह सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में वो पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहे हैं, वो वर्ड्स चल रहे हैं।
तो वो स्ट्रेस तो रहेगा ही, उसके बिना कोई तरीका नहीं है। ये एक्चुअली वो है ना कि ऑप्टिमम स्ट्रेस जरूरी है। इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि आप पैरालाइज हो जाएं, कि आपसे कोई तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन इतना स्ट्रेस भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं है, तब तो आप तो घूमते रहेंगे, फिर आप ढाबे पे बैठेंगे शमशाद में जाके या हमेशा घूमेंगे। भाई ऐसे थोड़ी होता है। आपको इतना स्ट्रेस होना चाहिए सो दैट कि आप ऑप्टिमम लेके उसको पढ़ाई में आप चैनलाइज कर सकें। अगर आप एकदम से एक्सट्रीम स्ट्रेस की इसमें आ जाएंगे तो फिर आपको ये सब एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसको मैनेज करने का तरीका निकालना पड़ेगा, 2-4 लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक दिन आधा घंटा कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी सो दैट डी स्ट्रेस हो, और फिर ऐसे आप एक रिन्यूड तरीके से वापस। एनीवे, बहुत लंबा हो गया स्ट्रेस पे। आई थिंक अगला ज्यादा लोग स्ट्रेस हो रहे हैं इसको सुन के, तो मुझे लगता है किसी और क्वेश्चन पे शिफ्ट हुआ जाए। हेलो, Mohammad Nabil Khan, are you asking something? No, ma'am, nothing. Nabil. No, I think कुछ क्वेश्चंस किसी ने कुछ लिख रहे थे लोग, आई थिंक चैट बॉक्स में या कहीं। चैट बॉक्स में कई सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि इकोनॉमी की प्री की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम से कुछ ऐसा जिससे और इम्पोर्टेंट वर्ड की तैयारी हुई है। बाकी तो मैंने विजन की क्लास इकोनॉमी की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम। अच्छा, मुझे लगता है कि हम इस क्वेश्चन को आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम में से आई थिंक दोनों लोग जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के थे, तो डायरेक्ट आइडिया नहीं है हमें कि हिंदी मीडियम की और कौन से लोग लिखते हैं। लेकिन अभी ऑन टॉप ऑफ माई माइंड ये बता सकता हूँ कि ये जो इकोनॉमी के लिए पर्टिकुलरली कोई ऐसी एक किताब जो है जिसमें सब कुछ मिल जाए आपको, वो जनरली नहीं मिलती है इंग्लिश मीडियम के लोगों को। जो एक बुक जो जनरली रमेश सिंह आई बिलीव देखते हैं लोग, उसका कुछ पोर्शन आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है इंग्लिश मीडियम में भी, और उसी का हिंदी का मीडियम की भी किताब आती है। लेकिन ये दृष्टि वाले जो है उनका मटेरियल है इकोनॉमी का, और वो आप देख सकती हैं हिंदी मीडियम के लिए। और एनसीईआरटी जो हिंदी में आती है, जो हिंदी मीडियम में आती है 10th और 11th की, वो देख सकते हैं आप उसके लिए। और उसमें भी वो सारे चैप्टर्स नहीं देखने हैं, जो मैक्रो इकोनॉमी के चैप्टर्स हैं वो देखने पड़ेंगे आपको, जो प्राइमरीली जीडीपी और इस तरह की चीजें जो एक्सप्लेन करता है, कौन से जीडीपी, बजट, फिस्कल डिफिसिट, और जो ये इस तरह के जितने हैं। और मुझे इसका क्योंकि टर्मिनोलॉजी आप हिंदी में थोड़ी सी मुश्किल होती है उसको रिकॉल करना, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें जो है आपको वो हिंदी मीडियम में मिल जाएंगी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में। और जो उसका करंट अफेयर, और क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमी का फोकस जो है वो करंट अफेयर्स पे होता है, जो आजकल जो स्कीम चल रही हैं, जो आज की डेट में जो चीजें न्यूज में है, उस पे मैक्रो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं रिलेट होके। तो इसलिए उसका मटेरियल पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कोचिंग का प्रिपेयर्ड मटेरियल है किसी भी एक कोचिंग का। दृष्टि क्योंकि हिंदी मीडियम में काफी मटेरियल निकालता है, तो उसके आप मटेरियल देख सकते हैं। ओके सर। और सर करंट के लिए हम पीटी 65 कर रहे हैं, तो ये ना रहेगा? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं, थोड़ा लाउड बोलें। सर कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स के लिए इकोनॉमी पीटी 365 का जो विजन आता है सर, ये कर रहे हैं, तो ये इनफ रहेगा कि बस और सोर्सेज भी कुछ? नहीं, मैं जैसे पहले बताया था ना कि कंपाइलेशन कोई एक ही देख लीजिए, उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं किसी और चीज से कब अगर टाइम हो। बट मेरा तो व्यू ये है कि कोई एक कंपाइलेशन जो है, जैसे 365 है फॉर एग्जाम्पल, जो आपने नाम लिया, उसको भी अगर आप बहुत अच्छे से कई बार पढ़ लें तो ज्यादातर चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। और ऐसा नहीं होगा कि किसी एक कोचिंग ने कुछ एडिशनल मटेरियल कुछ दे दिया होगा। मोर और लेस सारी कोचिंग वाले जब आप देखेंगे रिजल्ट बोलते हैं कि सब कुछ हमारे मटेरियल से आया था, सब कोचिंग वाले यही बोलते हैं कि सब कुछ हमारे मटेरियल से आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने तो उठा के सारा कुछ ही दे दिया है ना उसमें। किसी भी कोचिंग का आप जो चलती हुई कोचिंग है, विजन, इनसाइट, इसमें आप देखेंगे मोर और लेस सब कुछ ही कवर रहता है। तो कोई भी एक उठाइए और उस पर फोकस करके उसको कंप्लीटली पूरी तरह अच्छे से। इसमें समीर भाई ऐड करें। इसमें दो चीजें आप और कर सकती हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें बजट की समरी होती है एक, उसको जरूर देख लें। और उसमें जो की टर्म्स होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए फिस्कल डिफिसिट क्या है,
और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, मार्केट बोरोइंग क्या है, ठीक है, करंट अकाउंट क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, जीडीपी क्या है, नेट जीडीपी क्या है, इनको देखना ज़रूरी है। तो एक बजट की समरी ऐड कर लीजिए। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसका हम लोग अपने वक्त में कंसाइज आता था, कंसाइज इकोनॉमिक सर्वे करके जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता था उससे 8-10 दिन बाद मार्केट में एक पतली सी बुकलेट आती थी कंसाइज इकोनॉमिक सर्वे करके, जिसको हम लोग पढ़ते थे और अक्सर उसमें से 1-2 क्वेश्चंस हमें यूपीएससी में मिल जाते थे। और वो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते, जैसे एक बार आया था कि ब्रेंट ऑयल क्या होता है यूपीएससी में प्री में, ठीक है, तो वो उसमें कुछ ब्रेंट ऑयल की सेल का कुछ डेटा था जो कंसाइज में भी था, मेन इकोनॉमिक सर्वे में था, उसी से कंसाइज बना था। तो जो उसमें टर्म्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं उनको जरूर एक बार सर्च करके देखना है। उससे आपका 2 फायदे होंगे, प्री में आपको हेल्प मिलेगी, दूसरा जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो करंट फैक्ट्स आप डाल सकते हैं कि करंट क्या इस वक्त ग्रोथ परसेंटेज है, फिस्कल डिफिसिट क्या है, मार्केट बोरोइंग क्या है, ये सारी चीज़ों का एक आपको रफली एक आइडिया होगा तो आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज प्री के पर्सपेक्टिव से ऐड करना चाहूंगा कि हम सब लोग उतनी देर से जीएस की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 1, बट जीएस पेपर 2 जो है प्री का, जिसको सीसैट जनरली बोल रहे हैं हम लोग, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं पिछले 2-3 सालों से ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स को जान रहा हूँ जिनका पेपर 1 बहुत अच्छा हुआ है, 100+, 105+, 10+, लेकिन वो पेपर 2 में रुक रहे हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, पेपर 2 जिसमें 67 नंबर लाने होते हैं आउट ऑफ 200। तो 33% नंबर भी लोगों के नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं कि जनरली वो लोग उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं ज्यादातर एस्पिरेंट। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट की थ्योरी हम लोग पहले बता रहे थे, अगर आप एमबीए के एस्पिरेंट रहे हैं पहले, आपने अभी एमबीए किया है, आपको पता है कि रीजनिंग और पैसेजेस और बाकी चीजें कैसे की जाती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आप 200 में जनरली 150 और 140 और 130 लाने वाले लोग हैं, तो मे भी शायद आपको उतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बट इवन देन आपको जो है वो 2-4 पेपर करने पड़ेंगे लास्ट के 1 महीने में। लास्ट के जो 30 डेज जब आप बचेंगे, तो अगर आप बहुत अच्छे हैं एमबीए एप्टीट्यूड में और इस तरह की चीजों में, तो भी आपको वो 4-5 पेपर करने चाहिए, मेरा ये एडवाइस रहेगा। और लेकिन जो लोग उतने अच्छे नहीं हैं इसमें, और इसमें जरूरी है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है किसी चीज को एक्नॉलेज करना कि आप उस चीज में उतने अच्छे नहीं हैं, तो उसको आपको अपने आप को डायग्नोज करिए कि आप सीसैट में कहाँ पे हैं। अगर आप एक प्रीवियस ईयर कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, पिछले साल का या उससे पिछले साल का, और आप 2 घंटे दे के फुल पेपर करिए, और अगर आपके नंबर 70-80 के आसपास ही बन रहे हैं, तो मे बी शायद आपको ज्यादा पेपर करने की जरूरत है। और उसके लिए मार्केट से उठाने के बजाय जो प्रीवियस यूपीएससी के पेपर हैं सिंस 2015, वो तो कर ही लीजिए, क्योंकि 2015 ऑनवर्ड्स जो है सीसैट के मार्क्स ऐड नहीं होते थे। अगर आप लोगों को याद हो पैटर्न, तो 2011 to 14 मार्क्स ऐड होते थे सीसैट के, 15 ऑनवर्ड्स मार्क्स ऐड नहीं होते थे। तो हो सकता है कई लोगों को बात अटपटी सी लगे कि सीसैट पे क्यों फोकस करना है, लेकिन मेरा जेन्युइन एडवाइस रहेगा, बिकॉज आई हैव सीन अ नंबर ऑफ पीपल पिछले 2-3 सालों में जिनका सीसैट रुक गया है और उनका पहला पेपर बहुत अच्छा था। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ भी ये इस तरह की कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो कि आपने जिसमें बहुत ज्यादा कोशिश थी वो तो कर ली, लेकिन जिसमें थोड़ी कम कोशिश थी उसकी वजह से आपका पेपर रुक जाए। इसमें सीसैट सेकेंड पेपर में जैसा मुदस्सिर भाई ने कहा कि बहुत से लोगों का मुझे भी पता चला था कि डिस्पाइट दे हैव डन गुड मैथ इन देयर एकेडमिक, कुछ बीएससी मैथ भी थे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनका सेकंड पेपर क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ये भी एक वजह होती है। मुझे मुदस्सिर भाई को भी, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम सीसैट पेपर के लिए अलग से पढ़ें, लेकिन हम हमेशा 2-3 एटलीस्ट 4-5 तो पेपर सॉल्व करके जाते थे। तो मेरा अपना जो टेक्निक था, एग्ज़ाम से 1.5-2 महीने पहले एक अरिहंत का क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें 6 या 7 पेपर का सेट आता है वो। तो मेरी प्रिपरेशन टोटल सीसैट पेपर की वही होती थी कि मैं उसे एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले ले आता था,
और हर संडे को बैठ के एक उसका 2 से 4 का जो टाइमिंग होता था, एक पेपर सॉल्व कर लेता था। दैट वाज ऑल माय प्रिपरेशन। तो जैसे 5 साल के पेपर कर लीजिए, और अगर कुछ लोगों के मार्क्स बड़े मार्जिन में आ रहे हैं कि यू आर स्कोरिंग बिटवीन 60 टू इवन अगर आप 90 तक भी स्कोर कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप जब अपने रूम पर हैं तो आप पे कोई स्ट्रेस प्रेशर नहीं है। जब आप एग्जाम पे जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन स्ट्रेस या प्रेशर के वजह से भी आप गलत करते हैं। तो उन फैक्टर्स को देखते हुए आपको ये देखना है कि आपको 5 पेपर से काम चल जाएगा या उसके एडिशनल करना है। अगर एडिशनल करना है तो अरिहंत का जो एक टेस्ट का बुकलेट आती है टेस्ट पेपर्स की, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, और अगर आप का लग रहा है कि साहब मेरा 50 टू 60 स्कोर ही आ रहा है, तो फिर आपको डेली करने की ज़रूरत है। फिर आपका टेस्ट पेपर से काम नहीं चलेगा, आपको उससे रिलेटेड कोई एक मेंटल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एबिलिटी की कोई बुक, जैसे RS अग्रवाल और इस टाइप के 2-3 राइटर्स हैं जिन्होंने लिख रखी हैं, तो उन बुक्स को लेके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑप्शनल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है लोगों का चैट पे, हाउ टू सिलेक्ट अ परफेक्ट ऑप्शनल। अगर 2-3 ऑप्शनल में कंफ्यूजन है तो कैसे सिलेक्ट करें? समीर भाई कुछ लेना चाहेंगे? देखिए, ये स्टार्ट होता है सबसे पहले जब आप फर्स्ट डे डिसाइड करेंगे कि आप मुझे यूपीएससी में का एग्ज़ाम देना है और सिविल सर्वेंट बनना है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आप ऑप्शनल क्या चूज़ करें। तो सबसे पहले दिमाग उस तरफ जाता है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत उसकी मालूमात होती है। लेकिन मेरा तरीका ये है, या मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमने और मुदस्सिर भाई दोनों ने अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स नहीं लिए थे और ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं, तो उसमें 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और आर कॉन्स्टिट्यूशन या आर पॉलिटी करके किताबें, 3-4 किताबें जो बहुत बेसिक किताबें हैं, उन किताबों को पढ़िए और उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि साहब इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, जिसको पढ़ के मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। और इसके साथ दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 3 साल पढ़ सकता हूँ। फर्स्ट चीज़ ये है कि जो आपका दिमाग एब्जॉर्व कर सके और जिसको आप कंसिस्टेंटली 3 से 4 साल पढ़ सकें, क्योंकि यूपीएससी का एक साइकिल 3 साल का होता है, ये आप मान के चलिए। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि उसमें अवेलेबल मटेरियल क्या है मार्केट में, और आपके आसपास जो आपके टीचर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से ऐसी फैकल्टीज हैं जो आपको गाइड कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा कोई आउट ऑफ द वर्ड जाके कोई सब्जेक्ट ले लें, अभी तो नहीं है। जैसे पहले पर्शियन हुआ करता था, तो साहब पर्शियन में इंडिया में आपको 2 या 3 लोग मिलेंगे जिनको पर्शियन आती है। अब आपने पर्शियन ले लिया और उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही, तो आप कैसे करेंगे? या आपने कोई बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, तो उस चीज़ों को अवॉइड करना है। पहला क्राइटेरिया जिसको आप पढ़ सकें और 2-3 साल कंटिन्यूस पढ़ सकें और जिसको आपका दिमाग एब्जॉर्व कर सके। सेकंड चीज़, उसमें अवेलेबल मटेरियल क्या है और अवेलेबल गाइडेंस क्या है, 2 चीज़। तीसरा, ऐसा सब्जेक्ट अगर हो सके तो चूज करें जिसमें 2 में से एक एडवांटेज आपको मिले। अगर आप लैंग्वेजेस में से, लिटरेचर में से जाते हैं, तो लिटरेचर का एडवांटेज ये होता है कि मोर और लेस उनका सिलेबस कंपैरेटिवली ऑप्शनल से कम होता है। तो जो टाइम आप ऑप्शनल में सेव करेंगे उसको आप जीएस में और ऐसे पेपर्स में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिटरेचर में एक चीज ये है कि फिर आपसे आपका कमांड होना चाहिए। कमांड बहुत जरूरी है। जैसे मुदस्सिर भाई का उर्दू था, तो ही इज स्टिल कंसिडर्ड एज मास्टर ऑफ उर्दू। अभी भी कोई मेरे पास उर्दू का आता है तो मैं रेफर करता हूँ कि भाई मुदस्सिर भाई के पास जाइए। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपका एक लिटरेरी टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ड्राई आपका लिटरेचर नहीं होना चाहिए। मतलब यू शुड हैव अ नैक ऑफ दैट लिटरेचर। जब आप लिटरेचर को ऑप्ट करें तो आप टाइम सेव करेंगे अपने जीएस और दूसरे पेपर्स के लिए। दूसरा ये है कि अगर आप लिटरेचर पे नहीं जाते, आप किसी ऑप्शनल पे जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वैसा ऑप्शनल आपको अगर मिल जाए। लेकिन ये चौथा क्राइटेरिया है, मतलब फर्स्ट 3 अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो ये चौथे उस पे पायदान पे आएगा कि वो आपके जीएस से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रखता हो। अब सपोज आपने मैथ चूज कर लिया, अब मैथ आपका कहीं काम नहीं आएगा।
आपका सीसैट में थोड़ी बहुत आ जाएगी, वो भी बहुत बेसिक लेवल की होती है। तो आप मैथ्स में जितना टाइम दे रहे हैं या फिजिक्स में जितना टाइम दे रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं जीएस और ऐसे पेपर को कॉम्प्रोमाइज करेगा। उसी की जगह अगर आपके पास ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है, तो ये आपके जीएस पेपर में भी हेल्प करेगा और आपके आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। तो इन 4-5 क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको 2 या 3 ऑप्शनल शॉर्ट लिस्ट करने हैं और फिर उनको 2 या 3 महीने वक्त देना है ये समझने के लिए कि कौन सा मेरे हिसाब से बेस्ट सूटेड। ठीक है, ऑप्शनल में कोई ऐसा नहीं हो सकता कि साहब मैंने इंजीनियरिंग करी है या मैंने बीएससी करी है फिजिक्स से तो मैं फिजिक्स ही लूंगा, मैंने ज्योग्राफी से किया, मैंने इंजीनियरिंग करी, मुदस्सिर भाई ने उर्दू से किया, उन्होंने इंजीनियरिंग करी। मेरे ख्याल से हम लोग जितने लोगों को जानते हैं किसी ने अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं लिया था। उसकी 2-3 वजहें थी। एक तो ये कि ग्रेजुएशन में हम उतना अटेंटिव नहीं होते क्योंकि उस वक्त गोल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो हमने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं होता। अगर आपने 11-12 से ही प्लान बनाया हुआ है कि साहब मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, जैसे मेरे फ्रेंड है एक मिस्टर अबू इमरान, ये आईएएस झारखंड कैडर, उनका 10th से 11th से क्लैरिटी था कि साहब मुझे आईएएस ही बनना है। तो ही वॉज वेरी टैलेंटेड। वो एमबीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गए, दे के आए, जब बाहर आए मैंने उनसे पूछा कैसा हुआ तो बड़ा मुस्कुराने लगे, भाई क्या किया तुमने? तो मैं मोहम्मद रफ़ी की फ़ोटो बनाया आया OMR शीट। ठीक है, क्योंकि उनको एकदम क्लैरिटी थी कि आप मुझे हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री ही मेरा ऑप्शनल होगा और मुझे इसी से सिविल सर्विसेज देना है। उन्होंने हिस्ट्री ही लिया ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री उनका ऑप्शनल था और फिर उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी उसी लिहाज से कि उसे यूपीएससी के सिलेबस से मैच करते थे और पढ़ते थे। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो यू हैव मिस्ड दैट बस। तो आपको ये एडमेंट नहीं होना है कि नहीं साहब मैंने ग्रेजुएशन में ये पढ़ा था तो मैं अभी भी उसको पिक करूंगा। पहली चीज आप 4-5 बेसिक किताबें देख लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका दिमाग एब्जॉर्व कर रहा है, किसको आप कंसिस्टेंटली 4-5 साल पढ़ सकते हैं, अवेलेबल मटेरियल और गाइडेंस क्या है, और चौथी चीज वो आपको कितना बाकी पेपर में वो पेपर आपको मदद कर सकता है। मुदस्सिर भाई आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? Mudassir bhai, just unmute yourself, please. Sorry. Anyway, तो what I was saying कि समीर भाई ने ज्यादातर चीजें कवर कर दी हैं। इसमें बस एक चीज ऐड करूंगा कि जो ये हमारा ऑप्शनल सिलेक्शन है ना, वो इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए कभी भी। जैसे कि भाई अगर मैं उर्दू से करूंगा तो लोग मुझे पता नहीं उतने अच्छे दर्जे का सिविल सर्वेंट नहीं समझेंगे, या फिर मैं अपने सब्जेक्ट को छोड़ के करूंगा तो शायद लोग गलत समझें या इंटरव्यू में गलत इंप्रेशन जाए, या कुछ और मुझे किसी को प्रूव करना है कि यार मैंने तो देखो फिजिक्स से निकाल लिया। आपका गोल क्या है? आपका गोल है सिलेक्शन एग्जाम में। आपका गोल किसी को कुछ प्रूव करना नहीं है कि आपने इस पेपर को लेके कर दिया या उस पेपर को लेके कर दिया। आपका गोल है ऐसा ऑप्शनल सिलेक्ट करना जो उस गोल में मदद करे, फाइनल गोल। तो अगर आपका जो ये टास्क ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला है वो भी अनइमोशनल होना चाहिए, उसका सिर्फ एक ही एजेंडा होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन में ये हेल्प कैसे करेगा, और सिलेक्शन में हेल्प कैसे कर सकता है, उस पेपर में मुझे मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ अपने मार्क्स को। तो अगर मैं कोई पेपर है जिसमें मैं अपने मार्क्स मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, या अगर मैं उस ब्रैकेट में नहीं आ सकता जिसमें जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उतना नंबर लाते हैं, तो फिर मैं वो पेपर नहीं लूंगा। अगर आप मैं से मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली होती तो मैं शायद क्वालिफाई नहीं कर पाता, बिकॉज मैं बहुत ही खराब इंजीनियर था अपने इंजीनियरिंग डेज, खराब इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, इंजीनियर का तो बात ही छोड़ दी। तो मुझे मालूम था कि भाई मेरी सीपीआई अच्छी नहीं आती है, मैं जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में, तो मैं वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लेके स्ट्रगल ही करता रहूंगा पूरे पीरियड। सिमिलरली कुछ और लोगों के लिए कुछ और सब्जेक्ट हो सकते हैं, जो भी उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो हो सकता है उसमें वो स्ट्रगल ही करते रह जाए, बिकॉज उन्होंने सिर्फ अपने एक इमोशनल डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे वही लेना है जो 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 पहले था। अच्छा, इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत बात बोलते हैं कि ना मार्केट में ये वाला चल रहा है, जैसे मार्केट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो आप ले लीजिए। अब क्या है कि यूपीएससी जब ये मार्केट ट्रेंड को बहुत कभी कभी तोड़ने की कोशिश करती है, जैसे 2012 और 11 का एग्जाम था, 13 का एग्जाम था, 12 और 13 का, उसमें यूपीएससी ने अचानक से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन दे दिए
और फिर इवेंचुअली जब मार्किंग हुई तो इस तरह की मार्किंग हुई कि लोगों के सिंगल डिजिट में आए, उन लोगों के जिन्होंने सिलेक्शन हो चुका था जिनका पहले, तो जिनका 12 के एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका था। अच्छा 12, 13, 14 इसलिए बातें हो रही है ज्यादा क्योंकि हम लोग उसी पीरियड के हैं, तो इसको बुरा मत मानिएगा कि ये लोग तो पता नहीं कब की बात कर रहे हैं, हम तब वही बात कर सकते हैं जिसमें हम अपियर हुए। तो 12-13 में ये बहुत हुआ था कि लोगों को ये तोड़ना था, ये जो यूपीएससी को, कि हमें जो है ये जो मार्केट में चलने लगा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग ले रहे हैं और 398 ज्योग्राफी भी, और ज्योग्राफी भी और ज्योग्राफी भी फॉर दैट मैटर। तो इसलिए ये है कि आपको एक सेट, जैसे आप देखेंगे तो जनरली लोग 5-6 जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं उससे ही ज्यादातर लोग पिक कर रहे होते हैं ऑप्शनल, और कुछ लोग जो है वो लिटरेचर के सब्जेक्ट ले रहे होते हैं, जैसे रीजनल लैंग्वेज के लिटरेचर, मलयालम, तमिल, तेलुगु, और जो जनरली नॉर्थ इंडिया में कुछ जो लोग हैं वो उर्दू ले लेते हैं जिनका उर्दू का बैकग्राउंड होता है। लेकिन इसमें ये समझना है कि आपको जैसे बताया कि आपका नैक क्या है, अगर आप उसको नहीं सस्टेन कर सकते हैं अगले 1-2 साल के लिए किसी भी पेपर को, क्योंकि आप कम से कम ये लेके चलेंगे कि आप 2 अटेम्प्ट देंगे, तो 2 अटेम्प्ट के लिए भी 3 साल लगते हैं, तो 2 अटेम्प्ट में 3 साल तक वो पेपर पढ़ना और उसमें इंटरेस्ट होना, नॉट जस्ट कि किसी ने कह दिया कि जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उर्दू लिटरेचर लिया था अपने पहले और दूसरे अटेम्प्ट में, तब दो ऑप्शन हुआ करते थे उस पीरियड। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इतना ड्राई सब्जेक्ट लगता था कि मुझे उसमें एक स्ट्रगल होती थी हमेशा कि उसको कैसे सस्टेन किया जाए, और उसका इम्पैक्ट मेरे रिजल्ट पे आता था, बिकॉज मैं एक तो उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ता था मुझे, और दूसरे मुझे उसमें कभी भी उस तरह से मजा नहीं आता था पढ़ने, और एट द सेम टाइम मेरे जो उर्दू लिटरेचर था उसमें मुझे मजा भी आता था पढ़ने में, और पहले से भी मेरा एक इंटरेस्ट था, तो उसमें मेरा हमेशा बेटर रिजल्ट होता था। वो अलग बात है कि 13 में फॉर्चुनेटली 2 की जगह 1 ऑप्शनल हो गया, तो फिर मैंने उर्दू लिटरेचर कंटिन्यू कर लिया और उसके बाद मुझे सिलेक्शन हो गया उसी साल। तो ये समझना जरूरी है कि अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने उठाया ही इसलिए था बिकॉज बाकी लोग बोल रहे थे यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आसान होता है, बहुत लोग लेते हैं, आप भी ले लीजिए, इसमें क्या है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे होता नहीं है, इसलिए आपको वो 2 महीने जो समीर भाई ने कहे देना वो जरूरी है कि आप देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए हिस्ट्री में भी, फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री ले लिया, अब हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो जीएस में जो हिस्ट्री आती है उससे अलग, जो हिस्ट्री ऑप्शनल में है। तो अगर आपको उस तरह की, जैसे उसमें हिस्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट है जो कि अलग अलग वर्जन ऑफ हिस्ट्री होती हैं, वो चीजें हैं, अगर आपको नहीं मजा आता है, और बहुत बल्कि सब्जेक्ट भी है, पॉलिटिकल साइंस बहुत बल्कि सब्जेक्ट भी है, अगर आप वो उतना नहीं पढ़ सकते हैं और आपको लगता है कि मुझे छोटा सा ऑप्शनल चाहिए, तो फिर आप अकॉर्डिंगली देखिए कौन सा ऑप्शनल, छोटा सा ऑप्शनल आपको सूट करता है। बट बैक ऑफ माइंड हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि ऑप्शनल जो है वो मीन्स है, एंड नहीं है। एंड है आपका सिलेक्शन, गोल है सिलेक्शन, ऑप्शनल उसमें हेल्प करेगा अगर आप उसमें मैक्सिमाइज कर पाए, तो उसी पूरे ब्रॉडर व्यू से आपको सिलेक्शन अपने ऑप्शनल को चूज करना पड़ेगा। और कोई सवाल बताइए, तो मैम की इजाजत से, क्योंकि थोड़ी सी देर भी हो रही है। नहीं, keeping in view your busy schedule, both of yours busy schedule, and I think it was really humble of both of you to give so much of time. We thought कि 1 घंटे में होगा, but we have already crossed over that time. Thank you so much, Mr. Sameer and Mr. Mudassir, for joining us and being so humble and so helpful. बहुत सारी क्वेरीज तो मेरी अननोइंगली क्लियर हो गई हैं जो मैंने शायद नोट तो नहीं करी थी, बट इट वाज ऑफन इट यूज्ड टू क्लिक कि हाँ भाई ये हो तो क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो यू एक्सप्लेन इट सो ब्यूटिफुली, आप दोनों ने उसको इतनी आसान तरीके से समझाया, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मुझे तो कम से कम, एंड आई एम श्योर मेरे स्टूडेंट्स को भी ये फील नहीं हुआ कि बहुत फॉर्मल या कोई हिचक होगी कोई भी बात पूछने में। बट आई एम श्योर हमारे स्टूडेंट्स के पास अभी बहुत सारी क्वेरीज हैं जो अभी भी अनसेटिस्फाइड होंगी, so maybe we can have it some other time also, again because it will be a privilege that RCA keeps in touch with all of you. आप दोनों के साथ कनेक्टेड रहे, और मे बी अगर आप लोग की इजाज़त होगी तो इन बच्चों की क्वेरीज हम आपसे पर्सनल लेवल पे भी भेज के और उनकी करवा सकते हैं अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो। So thank you so much for being with us and sparing so much of time, Sameer साहब आपके लिए भी और मुदस्सिर साहब आपके लिए भी।
Thank Thank you. you so much. Thank you so much, ma'am. It was our pleasure. Thank you very much. जी, Thank you, direct ma'am. Thank you, sir. And best of luck to everyone who is preparing for civils. Your pre is close, so have faith in yourself and go all out. Okay, inshallah, all of you will clear. There's no doubt. We don't have doubt in your abilities. Neither Imran sir or Asiya ma'am have. So you should have. You should be very clear in your mind that you are going to succeed in this attempt only, not just three, but the entire mails and the interview. And we will soon see you coming to our department or whichever department picks you up. So our best wishes to you. inshallah. So thank you so much. I think we can take leave. So director साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, thanks a lot. You have already said. So, Thank you very much, everyone. thank you. Maybe we Thank you, meet sir. soon again on another questions and query session. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.